If you are looking to make a career in wealth management, then this podcast is for you. In today's podcast, I have with me my friend Shobit Goyal, CFA, who is my friend and a fellow CFA charter holder as well. So Shobit wealth management इंडस्ट्री में काम कर रहा है and he is here to share his experience और आप लोग को बताएगा कि क्या nuances हैं हम लोग बात करेंगे डिटेल में. So before we start this podcast, I have one more thing to uh, let you know. Today's podcast, we are starting a career guidance contest as well. इस podcast में हम 3 क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कुछ अलग से ड्यूरिंग द पॉडकास्ट और जिसके आंसर आपको देने हैं और उसमें से और आंसर आपको देने हैं कमेंट्स में. फिर उन कमेंट्स में से हम 3 लकी विनर्स को पिक करेंगे जिनको शोभित वेल्थ मैनेजमेंट में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं, उस पर करियर गाइडेंस करेगा अपने ही एक्सपीरियंस से. तो जो लोग भी वेल्थ मैनेजमेंट में करियर बनाना चाहते हैं, so watch this podcast till the end. So welcome Shobit to this podcast, and you accepted the invitation. Thank you for that as well. So first of all, I want you to introduce yourself in 60 to 90 seconds to our viewers. Sure, Prince. First of all, thank you for inviting me over here in your house. It is a lovely house. So talking about me, currently I'm working as an investment analyst with MICS International. Okay. It is a Dubai-based firm, financial consulting firm. We are into many things like corporate finance, auditing, business structuring, VAT, international taxation. And 2 years back, we started this wealth management business. And it is kind of a discretionary payment services where we are managing clients' portfolios, not an advisory business. So before that, I was working as a market analyst at BNY for 1.5 years. I worked there. Then I took a break for my CFA level 3, and then I joined this firm. So yeah, it's been pretty going well for me. Great, Shobit. So you talked about you took a break recently. मैंने सुना तो लेवल 3 के लिए ब्रेक लिया. कैसे स्टार्ट हुई ये जर्नी सीएफए की? मतलब क्या सोच के किया? अच्छा, उससे पहले हम बैकग्राउंड पूछेंगे कि क्या बैकग्राउंड है, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, क्या बैकग्राउंड है? Okay, so I have a commerce background, commerce Okay. with math. Okay. So I thought about CFA, when I was looking for career options after 12th in my 12th class during pre-board. I was an average student. I knew that I would get 95 or 97 plus marks that we need to get into DU. So I looked for the alternatives like CA, CFA, FRM. And I also knew that I don't want to do MBA. Okay. MBA finance. This CAT percentile is 99 plus is not a thing for me. So I looked for the alternatives, and then money was always a fascinating thing for me as well. So I looked at it, and I thought about being a economist as well. Okay. So that's why I did economics honors. But yeah, I knew from my class 12th only that I would be doing CFA. After my graduation or during my graduation, I would pursue CFA. So yeah, that's how I thought about doing the CFA. And in my final year of my economics honors, I took level 1. I did not complete it. Then COVID came, and then I took level 1, level 2. Then I started looking for a job. Then I did my market analyst job at BNY Mellon. During that job, I prepared for level 3, but I couldn't complete because of, it was tough for me to manage work and the studies together. So that's why I took a break for level 3. Then after level 3, I even joined a startup firm. That person approached me on LinkedIn. On LinkedIn, he wanted to start a personal financial advisory business only. Okay. So he approached me, and then I worked 6 months in that startup, but it also did not work out. But during that 6 months of period, I realized that I want to be in a wealth management industry. Great. Earlier, it was like, corporate finance, investment banking, M&As. These terms fascinate us CFA guys. So I was into this. I want to be in equity research. I want to do, corporate finance. But during those 6 months of working with a startup, I got to realize, yeah, this wealth management space could be a thing for me as well, because here I'm also doing the research. I need to meet clients as well. So it's a client-facing role. So I started doing personal financial advisory, and that startup did not work out. Then I joined MICS International again from LinkedIn. Okay, great. So LinkedIn is going to be a key enabler in your career, I think. True. I'm going to talk about importance of LinkedIn in my career. Okay, so chalo LinkedIn से start करते हैं. You have some
good following, like at 10,000 followers Yeah. on LinkedIn. So when you started building your LinkedIn connections, expanding your network, and what was the approach like? कि famous होना है, influencer बनना है, क्या game था? No, famous होना है वो issue नहीं था. Actually, I took I did an interview for a job at EY, so that did not work out well, and the feedback from that was that I lacked in communication. I guess I still do, but that person gave me feedback that my communication skills are not good. I should work on more on it. So then I thought कि नेटवर्किंग ही होगी जब भी जाके जॉब मिलेगी. देन आई स्टार्टेड पोस्टिंग कंटेंट रिलेटेड टू कॉर्पोरेट फाइनेंस और वैल्यूएशन. आई यूज्ड टू वॉच Aswa Damodaran a lot. I have like seen watch all his classes, valuation, MBA, or the corporate finances. So I used to pick content from there and here and there, and I used to post it on LinkedIn, and some news, current affairs that I used to post. Great. उससे धीरे धीरे लोग बढ़ते गए. सीएफए फर्स्ट, आई थिंक सीएफए हेल्प मी इन दिस एंड जो स्टार्टिंग हुई नेटवर्किंग की वो सीएफए से ही हुई. सीएफए के लोग कनेक्ट हुए, देन एक्सपेंडेड टू अदर डोमेन्स. बट यस, वहां से धीरे धीरे फिर वो जर्नी स्टार्ट हुई, मजा आने लगा. तो फिर अपॉर्चुनिटीज भी आई, लोगों ने अप्रोच भी किया काम के लिए, जॉब भी मिली. तो या तो ऐसे कंटेंट जर्नी रही है लिंक्डइन पे. बढ़िया यार, बढ़िया. सो अभी यू टॉक्ड अबाउट कम्युनिकेशन. लाइक कम्युनिकेशन पे जैसे हम लोग भी अपनी कम्युनिटी में बात करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, क्योंकि आप जब भी किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो लाइक द पर्सन हैज अ चांस टू नो यू, अंडरस्टैंड यू. अगर आप उस कम्युनिकेशन में लैक कर रहे हो तो एक गलत इंप्रेशन जा रहा है. एंड एक फेमस कोट है लाइक यू डोंट गेट अ सेकंड चांस टू मेक फर्स्ट इंप्रेशन. ट्रू. सो कम्युनिकेशन तो पावरफुल है. तो कैसे इम्प्रूव किया, और जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो लोग अपने कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या चीजें आपको हेल्प की? Practice, I guess practice is the only and right answer, because after that I took an interview, took an seminar on my college, Ramanujan College. So I did personal finance webinar for first or second year students, I guess. So वहां से start हुआ. Then I started posting videos on LinkedIn or Instagram. Okay. So that thing helped me. I'm not a camera shy person. Yes, I'm we not a can camera see shy person. that. तो हाँ, वो चीज मुझे हेल्प नहीं हुआ. बट कम्युनिकेशन का भी पार्ट है कि आप अपने थॉट्स को भी कितने अच्छे से गैदर कर पा रहे हो बोलने से पहले. सो दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट. जैसे बोलना, इंग्लिश और हिंदी डजंट मैटर, हाउ वेल योर थॉट्स आर स्ट्रक्चर्ड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वो हेल्प होता है. जैसे आप प्रैक्टिस करते रहते हो, आपको क्या बोलना है, कब कितना बोलना है, शॉर्ट में कितना बोलना है, यू डोंट ओवर स्ट्रेच अ टॉपिक. So that's how you practice being regular on those touch with those topics. Right. So you talked about structure part as well ना. तो हम लोगों ने इसके लूप को ब्रेक किया है कि हाउ कम्युनिकेशन इम्प्रूव. सो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है थिंकिंग. अगर आप अपनी थिंकिंग में क्लियर हो ना, क्लैरिटी से आता है एक्शन. हाँ. एक्शन से आता है रिजल्ट. हाँ. तो सब चीज की स्टार्टिंग है क्लैरिटी. ट्रू. अगर आप क्लियर नहीं हो चीजों में तो यू विल फेस चैलेंजेस. और क्लैरिटी कैसे आएगी? वो आएगी स्ट्रक्चर थिंकिंग से. सो लाइक ये कम्युनिकेशन का पूरा सिंपल सा लूप है: स्ट्रक्चर थिंकिंग, क्लैरिटी, एक्शन, रिजल्ट. सो आपने एक बहुत अच्छी बोली शोभित है कि यार हिंदी इंग्लिश डजंट मैटर. हम लोग हिंदी में ही हमेशा बात की, हमारी मदर टंग है. बिल्कुल. लेकिन अगर हम उसको क्लैरिटी समझा पा रहे हैं बात को तो दैट इज गुड. और मैं भी अपनी प्रीवियस जॉब में था, वहाँ लगता है कि लोग सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं. हम तो पूरे टाइमिंग सब नॉर्मली बात करते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं होता. हाँ. सब ठीक है, वो तो सिर्फ एक मिथ है कि आपको इंग्लिश हिंदी में करना है. ठीक है. अब नाउ लाइक यू टॉक्ड अबाउट सीएफए, लाइक how much time it took you to cover the entire journey and how you approached this game? You had a finance background, commerce background, so some parts will be like good for you. And what was the challenges like you faced during this phase of CFA journey? So as I said earlier, I started my journey, CFA journey, at final year of my graduation. So I took level 1 in 2019. Okay. And I completed level 3 at Feb 2024. So it took me around 5 years. Okay. It is like I did CFA twice, because I took level 3 and level 1 twice. So I almost felt like I did CFA twice. So the challenges I faced, I guess, was, okay, everyone faced, because I was taking the lectures online. Okay. The pen drive classes I took. So I was preparing alone. There was no other with whom I can share my thoughts, my learnings, my doubts. So I think that did not help me much. Otherwise, I don't think any other challenges I faced. It was pretty
easy if you like even with the lectures, if you have watching it correctly, practicing the questions right after the lectures, then it would help you pretty much. ओके, स्कॉलरशिप मिला था या पूरा पैसा डाला दो बार? स्कॉलरशिप भी मैंने 2 बार लिया, वो भी नहीं मिला। तो काफी बड़ा गेम हो गया ये तो। काफी बट बड़ा ठीक है, game हो गया। टाइमिंग का बोल सकते हैं क्योंकि कोविड था 90 से 20 में, 2-3 साल तो उसमें निकल गए। हाँ हाँ तो बोल लो कि इतना वो टाइम का कोई इशू नहीं है, बट पैसा थोड़ा ज्यादा चला जाता है तो थोड़ा वो लगता है कि वो तो है। ये कुछ और करते थे इतने पैसे में तो वो हो जाता, चलो ठीक है। तो पैसा बचाया था, घर वालों ने दिया था? घर वालों ने दिया था। चल बढ़िया फिर तो। जॉब के बाद आई गेस लेवल 3 तो मैंने खुद सा था, बाकी Okay. फिर घर वालों का ही था। Okay, so we talked about this contest now. So one question now I'm going to give you guys. So अगर आप जैसे शोभित ने एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया, तो एक क्वेश्चन ये है कि आप ऑनलाइन ज्यादा आपको कंफर्टेबल है या ऑफलाइन कंफर्टेबल है? तो आपको आंसर ही देना है कि शोभित ने क्या बोला, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है ना, ऑफलाइन सीए की प्रिपरेशन किया है, सेकंड ऑनलाइन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये। सो शोभित, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप वेल्थ मैनेजमेंट में काम कर रहे हो, लाइक यू आर एक्सपेंडिंग एंड यू आर लाइक बिफोर स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट वी आर हैविंग अ कन्वर्सेशन एंड लाइक कि आई ग्रैब दैट वन थिंग, लाइक यू हैव अ ओनरशिप माइंडसेट। तो पहले हम ओनरशिप माइंडसेट की बात करेंगे फिर बात करेंगे कि वेल्थ मैनेजमेंट की कुछ इन्स एंड आउट्स। ओके या कि ओनरशिप माइंडसेट की अगर बात करें तो वो आया मेरे पार्टनर्स के थ्रू ही, लाइक द टीम आई एम वर्किंग विद, द पर्सन हु हायर्ड मी, मिस्टर शीतल सोनी. So I approached him like I want to do a job. I was looking for a actually right after my CFA, I was looking for a job in India, but because I did not have any experience in wealth management, prior experience, many people rejected me. They all said, yeah, we respect that you are a CFA charter holder, but you don't have a client base, you don't have any experience, so it would be, a basic salary. Then I thought, if it is that this basic salary, then why should not I try Dubai, Singapore, these locations? As they said, CFA is the gold mine of the finance industry. So I tried looking for a job in Dubai, and I'm honestly saying that I sent out requests to around 250 to 300 people, searching manager, director, wealth managers, to these words, tags I used in LinkedIn search, and I approached them. Then this person liked my content, my profile, and he hired me. okay, great. So yeah, I was talking about the ownership mindset, because I have had the liberty here that I did entire thing from scratch here. We did entire thing from the scratch here, around 2 years, started from 2 years back. So yeah, वो काम करते करते, like you need to manage research department, you need to think of marketing, sales भी देखना है, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, क्लाइंट कम्युनिकेशन, क्लाइंट मैनेजमेंट, ये सब चीजें, तो वो ओनरशिप माइंडसेट आ ही जाता है. फिर एक ये भी था कि इफ यू आर इन वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस, आफ्टर 5 to 6 years आपको खुद का स्टार्ट करना ही करना है ना. आप जॉब में करते करते इतना कर सकते हो, वो बात नहीं है, बट स्टिल जब आपको 5-6 साल बाद खुद का ही स्टार्ट करना है, तो मुझे लगा मैं अभी से अभी खुद का स्टार्ट करता हूँ. इट्स फाइन 2-3 years. जॉब का फायदा ये है कि आपको एक बेस स्ट्रक्चर मिल जाता है, जहां से आप उनका एक्सपीरियंस ले सकते हो, आपको मिल जाती हैं चीजें, है ना, आपको क्लाइंट बेस मिल जाता है, थोड़ा थोड़ा वर्क कर सकते हो. स्क्रैच से स्टार्ट करने से ये भी है कि हाँ, आपको वो लिबर्टी, मतलब वो बेनिफिट्स नहीं मिलती, बट स्टिल धीरे धीरे करके वो बन ही जाता है. और वेल्थ का, जैसे हम अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं कि इट इज अ पेशेंस गेम इन्वेस्टर्स के लिए, तो ऐसा वो वेल्थ मैनेजर के लिए भी है कि बिजनेस तो धीरे धीरे बन ही जाएगा, एज लॉन्ग एज योर बेस इज सेट, राइट. वेल्थ में भी अब देखो 2 चीज होती हैं, या तो एक तो स्केल कैसे किया जाए, या तो अपना प्रोडक्ट बना दो, अब उसको स्केल करो, चाहे वो 10,000 का बंदा है या वो 1 करोड़ का बंदा है, प्रोडक्ट सेम है. तो इफ यू गेट द प्रोडक्ट राइट अकॉर्डिंग टू द राइट रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल, सो अगर प्रोडक्ट रेडी है तो स्केल करने में इजी नहीं है. सो आई हैव दिस, कोई नहीं, स्टार्टिंग स्लो है, बट धीरे धीरे वो बिजनेस तो बन ही जाना है. ओके हाँ. सो अभी लाइक वेल्थ मैनेजमेंट में कोई करियर बनाना चाहता है, कोई पर्सन जो देख रहा है, जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम भी कर रहा है, हाँ. तो अभी ऐसी क्या चीजें हैं जो उसको, 3 चीजें ऐसी बताओ जो जनरल पब्लिक को नहीं पता है वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में, जो आपको काम करके सीखने को मिली? सीखने में ये कि हाँ, जो ये चीज होती है कि वन शुड हैव अ पेशेंस. पेशेंस ये कहने की बात होती है. व्हेन द मार्केट्स आर फ्लक्चुएटिंग,
as we can see now, the last 15 days the volatility market has seen. अगर इसमें you are not controlling your emotions, so then it is a problem. You just can't advocate on paper the behavioral finance when you need to really implement those things in real life as well. But you can do that thing only when you are well researched about how things work. Because like we are advocating this thing after the war. If you see in the last 16 or 15 instances of war, the equity market has grown 3 months, 6 months, 1 year return after the war, the equity market has grown only. But if you do panic selling, if you're liquidating from the market portfolio, then you would bear a loss. So आप जब भी एडवोकेट कर सकते हो जब आपने हिस्ट्री पढ़ी है या आपने कुछ रिसर्च करी है, तो वो बहुत जरूरी है. मतलब एज अ वेल्थ मैनेजमेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू मैनेज क्लाइंट्स लाइक बिहेवियर्स कि वो पैनिक ना हो जाए, क्योंकि ट्रू क्लाइंट आपको कभी भी कॉल करेगा, सबसे पहले तो आपको बोलेगा क्लाइंट दिस इज अ फनी थिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व. क्लाइंट वुड से ये हमारा पैसा पड़ा हुआ है, आप इसको इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, पैसे इन्वेस्ट कर दो, बट आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है. मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, बट अगेन ही वुड कॉल 2 days आफ्टर, पैसा पड़ा हुआ है, आपने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ, आप देख लेना, बट अपने हिसाब से, मैं आपको ज्यादा फोर्स नहीं कर रहा है ना, वो आपको जो ठीक लगे वो कर लेना. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली 50% इज अबाउट मैनेजिंग इमोशंस. प्रोडक्ट तो 4-5 फंड्स होते हैं, वही घुमा फिरा के वही चीज है, वही इंडेक्स है. एक फंड अभी नहीं चला तो 2 साल बाद वो चल जाएगा. इट्स अ मार्केट साइकिल. फंड्स की भी अपनी मार्केट साइकिल है. कोई फंड भी है एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर सकता. उसकी जो रीबैलेंस, या फंड मैनेजर इज वेल prepared that he can do efficiently rebalancing, then it is a different thing. But कोई भी फंड, वही 3-4 फंड है, कंसिस्टेंटली तो कोई नहीं कर सकता. लॉन्ग 10 years CAGR सबका सेम ही आना है लार्ज के फंड का. तो what I was saying, I forgot. Like expectation clients की मैनेज करना है. हाँ, फंड्स वही हैं, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना, खुद के इमोशंस भी, मेरे खुद के भी हो जाते हैं कभी कभार, उनको मैनेज करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Okay, so if you are looking to work in the wealth management industry, it's a business of people management. अगर आप समझ पाओ तो, अगर आप लोगों को अच्छे से मैनेज कर सकते हो, बिजनेस तो बिजनेस है, लेकिन आप मार्केट्स जब ऊपर नीचे करते हैं तो आपको मेजर टास्क हो जाता है कि आप अपने लोगों को कैसे मैनेज रखो, आप उनको कैसे इन द लूप रखो, जिससे वो समझे कि यहाँ क्या चल रहा है अभी मार्केट में, और आपकी क्या फिलोसफी है, किस पे आप बिल्ड कर रहे हो चीजों पे. यू कांट at any point of time, you can't fulfill your client expectations. Okay. At any point of time, because I faced this. अगर क्लाइंट का रिटर्न पहले स्टार्टिंग में बोलेगा कि मेरे को आई एम लुकिंग फॉर जस्ट 12 to 13% रेट ऑफ रिटर्न, ओके, आपने उसको महीने में 4% का रिटर्न दे दिया, फिर उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, यार इसको 25% तक लेके जाओ, इसको 20% तक लेके जाओ. राइट. अगर मार्केट वही करेक्शन हो गया, ये सारा पैसा निकाल लो. दिस इज आई फेस्ड विद ओनली वन क्लाइंट विद इन 2 months. ओके. ग्रोथ रिस्क लेते हैं या पैसा निकाल लो. राइट. सो लाइक एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट तो इम्पोर्टेंट है, बट एक्सपेक्टेशन जैसे मैं ये तो बहुत ये तो मतलब हर पर्सन जो इंडस्ट्री में ऐसे काम कर रहा है ना, उन सबका प्रॉब्लम है. लोग क्या होता है कि जैसे मेजरली वो लोग कोशिश करते हैं कि कंपैरिजन करते हैं, मैं अपना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा दोस्त क्या कर रहा है, कोई बोलेगा 5% 50%, तो वो यार मेरा तो कम कर रहा है. तो बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप जो बेंचमार्क सेट करके रखा है उससे आप कहाँ कंपैरेटिवली कर रहे हो, तो वो ट्रू है. हम भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका बेंचमार्क क्या है. काफी लोगों को लगता है कि एक स्पेसिफिक नंबर है, से आई एम ओके विद 15% रिटर्न, इससे ज्यादा मुझे चाहिए नहीं. किसी का होता है कि निफ्टी को अगर बीट कर दिया तो वो ठीक है. या हो गया किसी मेरे फ्रेंड का उससे ज्यादा आना चाहिए. तो ये 3-4 बेंचमार्क होते हैं. मेरा टारगेट रिटर्न होता है 15%, अगर मेरा आ जाता है मतलब ओवर टाइम 5 or 10 years में, तो इट इज गुड. ठीक है. सो सेकंड क्वेश्चन इस कॉन्टेस्ट का कि वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है. जैसे हमने बात की अभी, तो आपको वो आंसर लिखना है कमेंट्स में. सेकंड क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको किस चीज को मैनेज करना आना चाहिए, किस चीज को मैनेज करना आना चाहिए? इमोशंस, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन और इमोशंस. या हमने आंसर ही बता दिया, याद रखना है. सो देखो भाई, अभी मेरा एक क्वेश्चन है कि यार जब जैसे मोस्टली जो लोग देखने वाले इस पॉडकास्ट को, हमारी ऑडियंस पूरी फाइनेंस करियर प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ऑलरेडी. तो अभी हम लोग जैसे एक क्वेश्चन मतलब एक बात बोली थी कि although you have cleared like level 1, level 2, level 3 of CFA, still you were getting
like rejections and facing rejections और so ये बहुत रियलिटी है. अगर आप एक डिग्री 3 पेपर पास कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आप एंटाइटल्ड हो कि आपने सीएफए के एग्जाम क्लियर कर लिए तो यू आर एंटाइटल्ड फॉर जॉब. लाइक अगर आप अभी देखोगे तो कितना लाइक मास एक्सोडस है. कितने लोग अभी एक लिंक्डइन पे मैं पोस्ट पढ़ा 40,000 लोग इंडिया में एनुअली सीएफए के लिए अप्लाई कर रहे हैं. वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है सीएफए इंस्टीट्यूट के लिए इंडिया. तो लाइक अभी जब 40,000 मतलब हर पर्सन के पास कोई ना कोई लेवल का क्लियरेंस है तो आप डिफरेंशिएशन एज क्या लाओगे. तो अभी इसको बता भाई ऐसे एग्जाम क्लियर करना और रियलिटी में कहाँ पे हिट हुआ एक्चुअल में. व्हेन द रबर मीट्स द रोड बोलते हैं ना. तो वो एक्चुअली वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल, और वेल्थ मैनेजमेंट की हर इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है सेल्स. ओके बेचना आना चाहिए अपने आप को. ठीक है. ठीक है. अगर आप अभी भी किसी को बोल दो कि यार ये सेल्स का काम है, ठीक है, वो कहे मेरे को सेल्स का काम, लोग क्योंकि तुरंत हमने मना लोगों ने टिपिकली वो बना दिया सेल्स तो टारगेट का काम है ना, टारगेट मीट करना है, ये बढ़ानी है, वो करना है. तो जो ये सेल्स वर्ड इज नॉट अ रॉन्ग वर्ड, हम लोग इसको गलत यूज कर रहे हैं. मतलब हम जॉब वाले बंदे सेल्स नहीं कर रहे तो पार्टनर सेल कर रहे हैं, वो जाके क्लाइंट से मीट कर रहे हैं, वो भी तो अपने आप को बेच ही रहे हैं ना. तो सेल्स इज नॉट अ रॉन्ग वर्ड. तो वो जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, जो कम्युनिकेशन है वहां पे, तो वो आई गेस मुझे लगता है कि थोड़ा लैक करता है. और अगर पर्टिकुलरली सीएफए की बात करें तो हम लोग, तो वो तो खैर हर कोई लिख देता है कि एमएस ऑफिस, पावर बीआई, प्रेजेंटेशन, वो सभी लोगों की स्किल्स अच्छी नहीं होती हैं. तो और रिसर्च करना भी एक है. हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं कि क्या फंडामेंटल्स हैं क्या नहीं, बट आप एक्चुअली में जब कॉन कॉल्स अटेंड नहीं कर रहे हो या एनुअल रिपोर्ट नहीं पढ़ रहे हो किसी कंपनी की, आपको समझ नहीं आएगा. राइट. ट्रू. और कभी कभी ये भी होता है कि फंडामेंटल्स, आप रिटर्न्स आपके फंडामेंटल्स को फॉलो करते ही नहीं है. कोई कंपनी में आपको इतनी कंपनीज हैं ग्लोबल लेवल पे भी, आरओई, आरओआईसी, आरओसी, 10% वर्ब, उनका करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो सब ठीक है, फिर भी रिटर्न फॉल कर रहा है. तो क्यों कर रहा है? ओके. सो लाइक प्रैक्टिकली चीजों को इम्प्लीमेंट करना और करके देखना इज लाइक रियल पार्ट. मतलब आप किसी भी लेवल पे, जैसे अभी मैं हमारी कम्युनिटी में एक पर्सन है हु इज आल्सो इन वेल्थ मैनेजमेंट, सम गुड मतलब ग्लोबल फंड हाउस ना. तो लाइक ही वाज सेइंग कि ही इज आल्सो इन वेल्थ मैनेजमेंट बट ही इज लुकिंग टू, ही हैज गॉट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि मार्केट कैसे रन करता है, कैसे ये बिजनेस बनता है. तो अल्टीमेटली इसमें बोलते हैं कि लाइक आपके पास एक पोर्टफोलियो होना चाहिए. कितने का पोर्टफोलियो, जैसे अगर आप बड़े लेवल पे किसी फंड हाउस में जाओगे सेल्स रोल में, तो व्हाट दे आस्क कि कितना पोर्टफोलियो कितना है. मतलब कि आपके पास क्लाइंट बेस कितना है. ट्रू. क्योंकि जो क्लाइंट्स होते हैं ना, मतलब जो रिलेशनशिप मैनेजर के साथ मूव करते हैं, ये मतलब जैसे सपोज एक्स पर्सन है, एक वाई कंपनी के साथ काम कर रहा है, तो उसके एक्स पर्सन के जितने भी क्लाइंट्स है ना, तो क्लाइंट उसको जानते हैं कि यार ये बंदा मेरे से रिलेशन है, तो वो जो जहां जाएगा वो कहीं ना कहीं थोड़े से वो लोग कैप्चर करके ले जाते हैं. बिल्कुल, ये बिल्कुल. इंडस्ट्री ऐसे चलती है. बिल्कुल. तो अभी इस पे क्या अंडरस्टैंडिंग है और क्या कैसे कोई मतलब, जैसे ठीक है यू आर नाउ building this organization from scratch, like you are there with since inception, तो कैसे स्टार्ट करना. और अभी जैसे क्या ये फिनोमेना देखा है कि लोग जानते हैं खुद को, शोबिस को जानते हैं, मतलब पर्सन पहले आता है कंपनी बाद में आती है, जैसे मतलब वेल्थ मैनेजमेंट में बोल सकते हैं. तो इस पे क्या थोड़ा. नहीं, बिल्कुल सच है. जैसे हमने बोला क्लाइंट रिलेशनशिप की बात करी, वो इंडिविजुअली ही बनती है, वो कंपनी से नहीं बनती है. अब लोग मतलब एमएससीएस को जानते हैं, बट अगर कोई क्लाइंट है वो तो मेरे को जाके कॉल करता है, पूछता है ना. तो वो चीज तो आप या उसको, दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस गेम, वो आप हटा ही नहीं सकते हो उसको. तो सेल्स मतलब जो जो लोग भी सेल्स प्रोफाइल में काम कर रहे हैं ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक क्लाइंट बेस हो, क्योंकि इंडस्ट्री में पैसा चाहिए. पैसा लाओ या पैसा बनाओ. अगर आप सेल्स में जा रहे हो तो पैसा लाना है. तो अब मतलब वो यार, जैसे बचपन में हम लोग ये सोचते थे ना कि भाई कि किसी का फेवर नहीं लेना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बट बहुत मिसकंसेप्शन है नहीं यार नहीं उसमें, नहीं मुझे ऐसा नहीं, लगता ये है. तो वेल्थ भाई मैनेजमेंट ऐसा है कि आपको मतलब चिपकू बनना पड़ता है, वो तो आपको बनना ही पड़ता है. मतलब फॉलो अप्स लेना, रोज पीपल डेली पर्सन करना. बनना पड़ेगा. हाँ. यस. नॉट अ पीपल प्लीजर पर्सन, बट फॉलो पीपल अप्स पर्सन. करना, उनको राइट एडवाइस देते रहना, राइट मार्केटिंग देते रहना, नॉट जस्ट मार्केटिंग मार्केटिंग, ऐसा कुछ ना कुछ न्यूज देते रहना. आपके क्या ओपिनियंस हैं वो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रेगुलरली अपडेट योर क्लाइंट्स, योर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स. ओके. अभी हम बात करेंगे जैसे सीएफए से लोगों का बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हाई हो गया है कि सैलरी एकदम तगड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा. हमारा व्यू है, हम जो भी बात कर रहे हैं पहले तो स्टार्ट मेरे को हमने ये से किया था सोच हम के. नहीं, मतलब मेरे को ये कि जो लोग सीएफए के एग्जाम क्लियर कर रहे हैं हाँ. उनकी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी क्या रहती है. अभी जैसे ही एग्जाम कर लिया, बंदा सोचता है कि मैं तो बहुत कुछ कर लिया हूँ, तो अब जब बाहर रोड पे आते हैं तो क्या लगता है कि कितना एक्सपेक्ट करता है दिमाग को, क्या दुनिया में चल रहा है. एज अ परसेंटेज टर्म में कोई एग्जाम्पल दिया था, जैसे 100 सोच के जा रहा है तो बाजार में कितना मिलता है, ऐसा बता दें. मैं कोई नंबर नहीं पूछ रहा एग्जैक्ट. एक्चुअली इसका नंबर भी नहीं है, क्योंकि
people do CFA not as a standalone, okay, वो MBA के साथ CA के साथ करते हैं, तो उनका जो काफी मतलब बैकग्राउंड होता है, कुछ इनका वर्क एक्सपीरियंस भी होता है, तो उसके बेसिस पे भी उनको मिल जाते हैं। कोई मैंने देखा कोई लेवल 2 करके भी 13 लाख ले रहा है, ठीक है, किसी का लेवल 3 भी हो चुका है, वो घर में खाली बैठा है। तो वही इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हाउ वेल ही इज एबल टू सेल देमसेल्व्स। राइट, गॉट योर पॉइंट। तो मतलब एक डिग्री से आप इंटरनल नहीं हो, मतलब आपके बाकी आप क्या कर रहे हो पूरा मिला करके वो आपको एक हेल्प चीज है, जब मैं आई एडवाइस CFA स्टूडेंट्स कि आप जब भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, हमारी इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है कि एक एक्सपर्टीज तो होनी चाहिए, किसी भी सेक्टर की या किसी भी थीम की कुछ एक एक्सपर्टीज हो। ओके। हाँ, ये नहीं है कि बस इक्विटी रिसर्च है, इक्विटी रिसर्च है, एक अगर आपका डोमेन है तो समटाइम्स कंपनीज हायर फॉर दैट डिवीजन ओनली, कि यार हम तो सिर्फ ESG में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम तो सिर्फ कंज्यूमर स्टेबल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर उनको कोई बंदा राइट मिल गया जिसके 5-6 कंपनीज, यही कंपनीज होती हैं जो 5-6 लार्ज कंपनीज हो गई, 5-6 स्मॉल कंपनीज को अगर कोई फॉलो कर रहा है, उसके पास डीप नॉलेज है सप्लाई चेन की, क्या प्लेयर्स हैं, कैसे कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो भी मार्जिन वगैरह हैं, तो अगर आपकी एक डोमेन नॉलेज भी है विद इन दी सेक्टर, तो इट वुड हेल्प यू। ओके, सो मतलब इन शॉर्ट शोभित बोल रहे हैं कि आप अगर इंडस्ट्री में काम करना चाह रहे हो तो आप किसी भी डोमेन में काम करो, बट आपको इंडस्ट्री के फंडामेंटल स्ट्रक्चर समझ में आने चाहिए। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। आप जब क्लाइंट से बात करते हो, क्लाइंट ये भी देख रहा है कि भाई किसको कुछ आ भी रहा नहीं आ रहा है। हाँ। देखिए हम लोग यहाँ ऐसे नॉर्मल, हम कोई कुछ ऐसा नहीं बेच रहे, यहाँ पे पीपल ही प्रोडक्ट है, क्योंकि लोग आपको पैसा दे रहे हैं, अपना लाइफ की अर्न मनी दे रहे हैं। ट्रू। तो वो देखते हैं कि सामने वाले में कैपेबिलिटी है भी या नहीं है, मेरे को गाइड भी कर पाएगा, बता भी पाएगा, या फिर आप सिर्फ वैसे ही बात कर रहे हो। ठीक है, अभी मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि वन myth about finance career, like what you used to think and what you really see in the ground. ऐसा तो मिथ्स तो मेरे अभी नहीं आया, क्योंकि मैं तो भी अर्ली फेज में ही हूँ। जो Okay. मैंने सोचा था कि जो हसल है वो अभी भी है, ऑफ Okay. कोर्स, कि वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ज्यादा टफ होता है वेल्थ मैनेजमेंट से, ऐसा कुछ नहीं है। वेल्थ मैनेजमेंट में भी आपको रिसर्च करते रहनी पड़ती है, आपको प्रोडक्ट लाना होता है। तो मिथ तो कुछ नहीं है, सब सही ही निकला जो मैंने सोचा था। Okay. एक चीज I'll talk about wealth management. Earlier we were talking about in and outs of wealth management. So I have realized this thing कि बिकता वही है जो complicated है। Okay. थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ, मुझे नहीं हाँ, समझा। जैसे like we have a product of 5 ETFs. These are very 5 ETFs. Okay. फंड ऑफ फंड है। No, ETFs. मतलब it's a model portfolio. You can say it's not a fund. Okay. It's a model portfolio of 5 ETFs, global ETFs. They are broad-based indices, even not even a country-specific ETF and not even a sector-specific ETF. Okay. अगर आप किसी क्लाइंट के पास जाके बोलते हो, कोई सीजन इन्वेस्टर है, वो बोलेगा यार ये तो मैं खुद ही कर लूंगा, मैं आपके पास क्यों आऊं। या फिर कोई इंडियन PMS फर्म है, वो एटलीस्ट स्टॉक रिसर्च कर रही है, 15-20 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना रही है, ठीक है, मैं तो उसके पास जाऊंगा एटलीस्ट वो रिसर्च तो कर रहे हैं। बट अगर आप उनको बोलो कि इनका रिटर्न तो कम है, हमारा रिटर्न फिर भी ये 5 ETF से ज्यादा बन रहा है, तो उनका रिस्पॉन्स होता है एटलीस्ट वो रिसर्च तो कर रहे हैं ना। तो क्लाइंट को चाहिए कि बस मैनेजर कुछ ना कुछ करता रहे, चाहे रिटर्न बने ना बने, हमें लग तो रहा है कि वो रिसर्च कर रहा है। Okay. अगर 5 ETFs ले लें तो मैं खुद ले लूंगा। सॉरी, but it is not about that. Okay. Selecting the funds is not only thing. We divide into 3 parts, like asset allocation, selecting the funds, and then rebalancing. आपने if you get your top down approach right, your asset allocation, कितना इक्विटी में, कितना डेट में, कितना कमोडिटीज में, फिर विद इन इक्विटी डेवलप मार्केट, इमर्जिंग मार्केट्स, बॉन्ड में भी कॉर्पोरेट जाना है, गवर्नमेंट जाना है, शॉर्ट ड्यूरेशन जाना है, लॉन्ग ड्यूरेशन जाना है। सो दिस इज द फ्रेमवर्क यू बिल्ड asset allocation. Then you choose funds based on relative valuation, based on growth numbers, and then if you get those 5 to 6 funds right, you do rebalancing. Okay, market move करती है साइकिल में, तो कोई एंड ओनली प्रिंसिपल यू शुड हैव इज बाय लो सेल हाई। अगर आपका एक ETF अपने पीक पे पहुंच चुका है, यू नो इट्स एट इट्स रेजिस्टेंस लेवल, गिरेगा तो प्रॉफिट बुक करके उसको नीचे आओ। किसी फंड को रीबैलेंस करते रहो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद इन दोस 5 फंड्स। तो ठीक है, हम इस पॉडकास्ट में तो ये चीजें प्रोफेशनल्स पे छोड़ देंगे, इंडिविजुअल्स को नहीं बोलेंगे करने ओके को। ओके। आप अपने प्रोफेशनल एडवाइजर से हेल्प लेके ये डिसीजन लेना। और इस पॉडकास्ट में हम जो भी बात कर रहे हैं, कोई आपको इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिक नहीं है, हम जनरल करियर रिलेटेड बातें कर रहे हैं, तो आपको जो भी डिसीजन हो बट प्लीज कर आई जस्ट वांट टू ऐड हियर दैट वेल्थ मैनेजमेंट में जितना आप सिंपल कर सकते हो अपनी जर्नी को, डोंट लुक फॉर कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी खरीदना चाहिए, मुझे ये भी खरीदना चाहिए, डोंट लुक फॉर दैट। अभी भी मार्केट में जैसे लास्ट 15 डेज में हुआ है,
I'll talk about कि हमारा जो रिटर्न है, I'll just add one thing, it's not a professional advice, कि जो कोर पोर्टफोलियो है ना वो इतना ड्रॉडाउन आया ही नहीं इसमें। अगर आपने ज्यादा ये फंड भी ले लिया, वो फंड भी ले लिया, 10-12 ETF का बना लिया, वो आपका ज्यादा गिर जाएगा। बट अगर हमने 2 या 3 फंड आपके लॉन्ग बेट्स होते हैं, आपने उनको बाय करके रखा है ना, उनमें ड्रॉडाउन आया नहीं है। तो बी सिंपल एंड स्टूपिड, ओके बी सिंपल एंड स्टूपिड। राइट, गॉट द पॉइंट कि क्लाइंट्स के पर्सपेक्टिव से सिंपल रखो, मतलब सिंपलीफिकेशन इज द की, लाइक हाँ आप जितना इजी रखोगे उतना बढ़िया। हाँ सो गॉट द पॉइंट। सो माय थर्ड क्वेश्चन टू यू गाइस कॉन्टेस्ट का, कि अभी हमने बात की थी ये शोभित ने बोला कि कोई इसके फंड में एन नंबर ऑफ ETF है, तो उसका आंसर आपको कमेंट में करना है कितने ETF है। बेसिक सा क्वेश्चन है और मैंने बता दिया आंसर 50 बार। तो शोभित एक लास्ट क्वेश्चन ये मेरा कि लाइक अभी करियर में आगे कहाँ जाना है, 3 से 5 साल में अगले कहाँ कहाँ देखते हैं अपने आप को? आंख बंद करके मुझे सच बता दे सारा। आंख बंद करके मैं तो खुली आंखों से ये सोचता रहता हूँ कि अपना जो बिजनेस है वेल्थ मैनेजमेंट का, वी आर वर्किंग ऑन अ टेक प्लेटफॉर्म एज वेल, इसी को इंक्रीज करना है। एक्चुअली ग्लोबल इन्वेस्टिंग इंडिया में अभी इतना पॉपुलराइज नहीं है। ओके या फ्यू फर्म्स जो भी कर रही हैं, बट जिस स्ट्रक्चर से हम कर रहे हैं वो भी अभी कोई नहीं है। मासेस को तो नॉलेज ही नहीं है। लाइक अगर आप किसी भी कंट्री की बात करो तो 90% होम बायस होता है। यू आर ऑल्सो फैमिलियर विद इंडियन मार्केट, इंडियन कंपनी, आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हो। बट अगर आप ग्लोबल लेवल पे जाओ, इंडिया सिर्फ 3 to 4% ऑफ मार्केट, ग्लोबल मार्केट है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं ग्लोबल में, ग्लोबल मार्केट्स में। रिटर्न भी ज्यादा है। इंडिया के रिटर्न हम देख ही रहे हैं लास्ट 2 ईयर से क्या कर रहा है, और करेंसी किस लेवल पे डेप्रिशिएट कर रही है हमारी। तो फोकस अभी यही है, थोड़ा पर्सनल फाइनेंस को प्रमोट करना, ग्लोबल इन्वेस्टिंग को प्रमोट करना। तो या यही गोल है, इसमें बस सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, बिल्कुल होंगे यार। और मतलब मैं थोड़ा सा फॉर्म बिलीवर हूँ इंडिया का, और पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आके खोल के रखना है कि लाइक कहाँ से पैसा बन सकता है, अल्टीमेट गोल वो है। हाँ आपके बिलीफ और पैसा बनाने में डिफरेंस होता है दो जगह। ठीक ये है, भी है। तो शोभित अभी जो लोग करियर में तीन लाइक 2-3 ऑप्शंस में डाइसी हैं, वो उनको क्लैरिटी कैसे मिले कि मुझे वेल्थ मैनेजमेंट, जैसे देखो जब कोई करियर स्टार्ट करता है ना तो उसे पता नहीं होता कि मैं किसके लिए फिट हूँ। तो एक्चुअल में वो बंदा कैसे अपनी चीजों को क्लैरिफाई कर सकता है, क्योंकि बंदा रिसर्च में जाना चाहता है, हर कोई रिसर्च में जाना चाहता है, सेल्स से लोगों को डर लगता है। थर्ड चीज में जो भी ऑप्शन देख रहे हैं उनमें क्लैरिफाई कैसे करें कि मेरे लिए क्या बना है, मैं किसके लिए फिट हूँ? क्या देखो लगता ये है? तो आपको इंटर्नशिप करके या प्रोजेक्ट्स करके ही पता चलेगा, या डू प्रोजेक्ट्स एट योर इंडिविजुअल लेवल। अगर किसी कंपनी के साथ आपको अनपेड इंटर्नशिप भी करनी है तो डू दैट। मुझे रियलाइज होता है ये चीजें, क्योंकि एक्सपेक्टेशन होती है यार फ्री में काम करना पड़ रहा है ना, पे नहीं है, इतना अच्छा पे नहीं मिल रहा है। बट एज लॉन्ग एज इट इज हेल्पिंग यू इन योर करियर, डिसाइडिंग व्हाट यू वांट टू अचीव, व्हाट यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट, सो डू इट। डोंट थिंक अबाउट दिस मनी पैकेज अर्ली इन योर करियर। पैसा आ जाएगा। वही वाली बात है, अगर आपकी स्किल्स आ गई, आपकी एक एक्सपर्टीज आ गई, तो मनी विल फॉलो जस्ट लाइक ठीक है, लिक्विडिटी। मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ इस पॉइंट पे कि नेवर डू एनीथिंग फॉर फ्री। मेरा तो ये प्रिंसिपल हो गया अभी कि अच्छा। ठीक है, बिकॉज लाइक आज देखो दुनिया में हर चीज फ्री में अवेलेबल है। हाँ। कोई नॉलेज, इंफॉर्मेशन, आपको CFA की कोचिंग पढ़नी है, CE कोचिंग पढ़नी है, फर्म की पढ़नी है, आपको जो नॉलेज चाहिए सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। बट द प्रॉब्लम इज अमंग ऑल ऑफ अस पीपल इज दैट वी डोंट वैल्यू फ्री की थिंग। सिमिलरली वो करियर्स में भी अप्लाई होता है। आप कहीं पे भी फ्री का, मैं नहीं कह रहा कि आप बहुत ज्यादा बड़े पैकेज के पीछे भागो, आई एम जस्ट ट्रू सेइंग ट्रू। कि एटलीस्ट कुछ तो मिले, क्योंकि सामने वाले की भी स्किन इन द गेम रहनी चाहिए। उसकी स्किन इन द गेम ही नहीं है तो वो आपको क्या दिमाग लगाएगा? थोड़ा बहुत ही पैसा दे रहा था उसका ये तो है कि यार इसको पैसे का रिटर्न बनाना है इसमें से। तो कुछ भी मतलब ठीक है, वो बोल रहा है कि थोड़ा पैसा, अगर पैसा स्टार्टिंग में ज्यादा मतलब उसको इसके पीछे मत, फोकस नहीं होना चाहिए। हाँ, बट कुछ पैसा तो मिले। मैं मतलब फ्री वाली चीजों को बिलीव नहीं करता हूँ इतना, नहीं, जैसे आपने फ्री की क्योंकि बात करी, अगर वो जो फ्री जैसे ऑनलाइन सब अवेलेबल है, हाँ बट वो ना स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं है। राइट, AI भी है, गूगल से भी है, जो भी यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं, बट वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है। हाँ इफ यू आर एबल टू स्ट्रक्चर दैट करिकुलम, दैट व्हाट यू वांट टू ट्राइंग टू लर्न, देन इट इज वेल एंड गुड। बट फिर वहां पे क्या है ना, जब स्ट्रक्चर नहीं होता तो आदमी डिसिप्लिन भी नहीं होता है, वो मोटिवेशन लैक हो जाती है फिर वहां हाँ, पे। मतलब वो सही बात है कि पढ़ने का, बट बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जहाँ स्ट्रक्चर्ड, जैसे खान अकेडमी ले लो। जब मैं हाँ अपना CFA करा तो मैंने इकोनॉमिक्स पूरा वहां से पढ़ा, मुझे इकोनॉमिक्स कभी नहीं आता था, कभी नहीं पढ़ा था। हाँ। तो बहुत आप ढूंढो की दुनिया में सब मिल जाएगा, लेकिन अगर जॉब करने जा रहे हो, कहीं भी काम करने जा रहे हो, तो कुछ तो पैसा ले लो भाई घर सबको चलाना है और सबको लास्ट में पेट्रोल भरवाना अपनी गाड़ी में तो वो कर लो। तो चलो चल भाई शोभित, एक रैपिड फायर राउंड करते हैं हम लोग ना, 4-5 क्वेश्चंस का, जल्दी आंसर देना मेरा सोच के। आई डिडंट नो आई वाज इन कॉफी विद करण। Okay. नहीं, it's not coffee with Karan, but it's a rapid fire, small rapid fire. 4 क्वेश्चन है बेसिकली। तो सबसे पहले ऑफिस के वर्क फ्रॉम होम? ऑफिस। ओके। सेकंड, होम टाउन या मुंबई? मुंबई। ओके। इन्वेस्टिंग इन इंडियन इक्विटीज और ग्लोबल इक्विटी? ग्लोबल इक्विटीज।
अपना खुद का एसेट एलोकेशन बता, अभी इक्विटी में कितना कर रखा है, क्या कर रखा है, जो भी है परसेंटेज। मेरा 100% इक्विटी में है, स्मॉल मिड लार्ज। 5% 5 to 10% गोल्ड में, रेस्ट इज इन इक्विटी। स्मॉल मिड लार्ज। लार्ज, ऑल मोस्टली लार्ज। ऑल लार्ज एंड मिड। ओके। सो गाइस, ये अपना पैसा इंडियन इक्विटीज में डाल के रखा है और सबको ग्लोबल इक्विटी में डालना। No, no, you can follow my LinkedIn post. I monthly post my global equity portfolio. ठीक है, तो भाई अभी now we are about to close this podcast. If you want to say something, if you want to guide anyone, like people, if you want to give any message, you can say. Any message? I think he talked about ownership mindset. I think it is very important कि सबका ownership mindset होना चाहिए, entrepreneurship का होना चाहिए। अगर आप जॉब भी कर रहे हो, आपका अगर ये माइंडसेट है कि आप सिर्फ जॉब कर रहे हो, तो आप जॉब ही करते रह जाओगे उसी कंपनी में भी। अगर अपने पार्टनर्स को वो इनपुट्स ला के नहीं दे रहे हो, अपनी कलीग्स को वो इनपुट्स ला के नहीं दे रहे हो कि यार हाँ मैं भी एक उसी ही फर्म में एक पार्टनर लेवल वर्ती बन सकता हूँ, तो वो आपकी माइंडसेट है कि आप क्या सोच रहे हो। अगर जॉब जॉब करने में, यहाँ जॉब कर रहा हूँ मैं, तो 2 साल बाद वो सर्च कर लूंगा, जॉब हॉप कर लूंगा। अगर आप स्टार्टिंग में सोच रहे हो कि हाँ हाँ ये वाली जॉब का ऑफर आ जाए, 2 साल में कहीं और स्विच मार लूंगा, तो ये आपके माइंडसेट की दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट खराब नहीं है। अगर काम कर रहे हो तो ऐसा सोचो कि मेरा ही है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको उसका उतना वर्थ इट नहीं लग रहा है, जो भी आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो देन यू कैन स्विच आउट, यू कैन थिंक, Explore बट other things. हाँ एक्सप्लोर दी अदर थिंग्स। बट माइंडसेट तो हमेशा एंटरप्रेन्योर वाला ही होना चाहिए। और वन थिंग आई हैव रियलाइज कि जैसे एंटरप्रेन्योरशिप का, यू कांट डू थिंग्स अलोन। फर्स्ट इन दिस स्टार्टिंग मेरे मन में आता कि हाँ ये चीजें मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, बट since when I have my own team and I delegate some work to them, then I know the importance of my team. You know, I can't do anything alone. So team हो तो better है। टीम के साथ काम करने में भी अच्छा लगता है। कोई अचीवमेंट है टीम के साथ शेयर करो तो वो भी बेस्ट है। तो ये दो थिंग है, और वही it's connected only, entrepreneurship, teamwork, it is very important. And if we're talking about investing, wealth management, so as an investor, as I said, we say it, KISS, keep it simple and stupid. Right, great. So great, शोभित. So guys, आपने देखा होगा शोभित ने अपनी जर्नी से काफ़ी चीज़ें शेयर की, और हम लोगों ने कॉन्टेस्ट के 3 क्वेश्चन ही पूछे हैं। आप लोग पूरा कॉन्टेस्ट, आप पूरे उसके 3 आंसर दो, और पूरा हमें समराइज करके बताओ कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, जिससे हम लोग इसको और इम्प्रूव कर सकें। और आपको क्या लगता है कि किस टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन और चाहिए, सो दैट वी विल इनवाइट दोज काइंड ऑफ गेस्ट एज वेल। तो थैंक यू शोभित, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी, एंड नाइस टू टॉक Thank टू you, यू। thank you. चलो भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड विल मीट इन सम अनदर पार्ट।